Namaste. We have already started the lesson Cell, the fundamental unit of life. Today it is fourth lecture. In cell, I have already told you that all the living organisms, plants or animals, they are made up of cells. Cell is having a plasma membrane. Outer to the plasma membrane there is cell wall. Inside it, inside the cell, there is a nucleus, and between the plasma membrane and the nucleus there is cytoplasm. Today I will tell you about the nucleus, the very important part of cell, the nucleus. I have already told you about cell wall. I have already told you about plasma membrane. Today I will tell you about nucleus. प्रैक्टिकल की वीडियो के अंदर एक मैंने ऑनियन की वीडियो बनाई है, माइक्रोस्कोप में देखकर कि वो कैसे नज़र आती है, उसमें न्यूक्लियस कैसा नज़र आता है, वो वीडियो सभी स्टूडेंट्स को ज़रूर देख लेनी चाहिए, मेरे प्रैक्टिकल ग्रुप में बनी हुई है। तो व्हाट इज न्यूक्लियस? समझने के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, समझने के लिए है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं है। समझ लीजिए कि सेल एक कमरा है, उसकी 4 दीवारें हैं, और पुराने ज़माने में हम फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, रोटी ऊपर छिक्के में टांग दिया करते थे, छिक्के में रोटी टांग देते थे ताकि बिल्ली चूहा भी उसको ना खाए, और जब भी हम आते हैं वो छिक्के में से रोटी निकालते थे, खा लेते थे। वो छिक्का न्यूक्लियस है, और बाहर की हवा वो साइटोप्लाज्म है, और 4 दीवारें जो है वो सेल वॉल है। मेरे ख्याल में अब आपको सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पूरा आइडिया हो गया होगा। तो न्यूक्लियस जो है वो लटक रहा है बीच में सेल के अंदर, उसके बाहर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बारे में भी मैं बताऊंगा, आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, nucleus is a double layered porous nucleus has a double layered porous nuclear membrane. तो nucleus is having a nuclear membrane. This is double layered. ये देखिए double layered बनाई गई है, और इसके अंदर ये खाली जगह है। It is double layered and it is porous. इसके अंदर छेद है। This is nuclear membrane. Nuclear membrane can come in contact with the parts of the nuclear membrane. The solution inside the nuclear membrane can go to the cytoplasm, and from the cytoplasm it can enter into the nuclear membrane. From the nuclear membrane into it. So I have told you now that there is a nuclear membrane. एक वीडियो के अंदर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाऊंगा आपको निकाल करके, वो भी मैंने वीडियो एक आध दिन में डाल देनी है, वो भी देख लीजिएगा। तो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म, देयर इज साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Inside the nucleus there are many thread-like structures. एक जाल बिछा हुआ है, there is a network of thread-like structures. This network of thread-like structures is called chromatin network.
At the time of division of cells, this chromatin network loses water and it comes at the equator of the cell. At the equator of the cell it loses water, get shortened, और ये हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ जाते हैं. दीज रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. सो इनडायरेक्टली क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन नेटवर्क ही है, परंतु जब क्रोमेटिन नेटवर्क सेल की डिवीजन के टाइम व्हेन इट लूजेस वाटर इट टर्न्स इनटू chromosomes. Now what are chromosomes? Chromosomes are composed of DNA and protein. Remember that the chromosomes, they are the carriers of heredity. माँ बाप के गुण बच्चों के अंदर जाते हैं तो ये क्रोमोसोम्स के जरिए जाते हैं. डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड जीन्स. क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे होते हैं और जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. ये जीन्स ही हैं जो माँ बाप के गुण बच्चों में लेकर जाते हैं. नाउ इन सम प्रिमिटिव न्यूक्लियाई, primitive cells we can say, the nucleus is not well developed in primitive cells. Bacteria, for example bacteria, in bacteria the nucleus is not well developed. Nucleus is not having the nuclear membrane, only the inner part is there. Nuclear membrane is not there. Such nuclei are called, या such a nucleus is called nucleoid. So in bacteria nucleus is not present, nucleoid is present, and such animals are called prokaryotes. Such animals are called prokaryotes, and this is the structure of cell of a यूकैरियोट. यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज ए सेल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस, दिस पार्ट is called cytoplasm. Now what is cytoplasm? It is a fluid like structure, fluid content in between the nucleus and the plasma membrane. In between the nucleus and the plasma membrane it is a fluid content. Now this fluid content has many organelles. It is having vacuoles, it is having mitochondria, Golgi apparatus, lysosomes, plastids, endoplasmic reticulum. Now what are vacuoles? वैक्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर खाली जगह होती है, खाली स्थान होता है. प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स बड़े होते हैं, परंतु एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स जो है वो छोटे होते हैं साइज में और ज़्यादा होते हैं. दिस इज वैक्यूल. वैक्यूल जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं, याद रखिए हर एक ऑर्गेनेल का अपना काम है. ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज डिफरेंट फंक्शंस. तो ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा और कल मेरा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा. स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो है अपनी कापियों पर लिख लीजिए, उनके आंसर्स लिख लीजिए और